Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to the living God. धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी महिमा. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं. मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं. नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ. परम पिता की सना, परम पिता की सना. मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं. मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं. मुक्तिदाता बख्शनहारा, मुक्तिदाता बख्शनहारा, पालनहारा वही, पालनहारा वही. झुक झुक जाओ, शीस नवाओ, झुक झुक जाओ, शीस नवाओ. सबका सहारा वही, सबका सहारा वही. यीशु मसीह तेरे जैसा दूजा कोई नहीं, कोई ही नहीं. नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ. मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं. हालेलुया. आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें. आज हमने संदेह के समय चुना है कि हम रशिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करें. हालेलुया. मैं चाहता हूँ आप सभी, रशिया में बहुत से लोग स्ट्रैंडेड हैं दूसरे कंट्रीज़ में, वो अपने कंट्री नहीं जा सकते. मैंने न्यूज़ पढ़ा कि कई हज़ार लोग स्ट्रैंडेड हैं. लेट्स प्रे दैट दे कैन गेट बैक टू देयर कंट्री. लेट्स प्रे फॉर साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में अभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करें. अफ्रीका के कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां कोरोना भी नहीं पहुंचा. परमेश्वर की कृपा हो अफ्रीकन साउथ प्रार्थना करें. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद. यीशु मसीह तेरी महिमा, 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 तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो.
Jesus, we lift up before you Russia, such a great, really great nation, gigantic in size and in geography. And Father, what a melting pot of various cultures, has such a tremendous history. We pray, Father, that your Spirit will move in Russia. Your Spirit will move like never before. Your Holy Spirit will break every iron curtain and every closed wall that deters your gospel, the true gospel. Even, Father, the Orthodox churches that are all over. Lord Jesus, that you will be exalted in Russia. Your name will be lifted up. And Father, we pray for South Africa. We bring before you the African continent, the entire African continent. We pray, Lord, that your mercy will pour out on Africa. Your mercy will pour out on Russia. Father, we pray for your mercy. We pray for your mercy. Your mercy will pour out on Russia. Your mercy will pour out on African continent. You will relent in your anger. Hallelujah. You will relent, oh merciful God. You will relent because of the irrevocable covenant that you have put your signatures in the blood of your Son Jesus. And you said that you're not delighted when wicked die, but your pleasure is that they return to you, that they repent. May in African continent, particularly in South Africa and in Russia, as we all intercede, Father. Father, we thank you for protecting India. Lockdown has really protected, but we know that has prevented this deadly virus from wreaking havoc in India. Father, I pray in the name of Jesus that all fear that is in the hearts of people shall be eliminated. Father, of refreshing will come. Your word says, repent, of refreshing may come from the Lord. Identify with the serious nation and our nation, and we come before you, mercy, pleading your mercy, pleading the blood of Jesus, unleashing in this tumultuous time. The demonic spirits are unleashed. We also know that there are angels working. We also know that the Spirit of grace is far greater work than the forces of darkness are doing. So we give you praise and glory. For all things work together for good, for them that love you, and for them who are called according to your purpose and your plan. Father, we bless your name. तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं स्वर्गीय पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं. रशिया को, साउथ अफ्रीका को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को तेरे लहू के साए के नीचे लाते हैं. तेरा अनुग्रह और तेरी कृपा और तेरा अभिषेक उतरे प्रभु. प्रभु, हम अपने भारत की कैपिटल के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वायरस के केसेस आ रहे हैं. प्रभु, हमारी कैपिटल के ऊपर कृपा करना. प्रभु, मुंबई पे, महाराष्ट्र पे कृपा करना यीशु मसीह. केरला पे कृपा करना यीशु मसीह. केरला पे तेरा हाथ हो यीशु मसीह. हम प्रार्थना करते हैं भारत को उत्तर से लेके प्रभु जी, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक. प्रभु, हम अपने इस देश को आपके पवित्र, हालेलुया, आपका नाम ऊंचा हो. प्रभु, आपके नाम की जैसे उस बहन ने गवाही दी मीडिया में जाके, ऐसे हजारों, सैकड़ों, लाखों गवाहियां पैदा हों कि यीशु है, जीवित है और अद्भुत काम करता है. हालेलुया. प्रभु जी, आपके नाम की हम महिमा करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद. सभी धन्यवाद करें प्रभु का. धन्यवाद करें इन प्रार्थनाओं के लिए. धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद. प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो. name, bless your holy name, holy name. We praise you, Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach. We praise your name, Yahushua HaMashiach. प्रभु, आपके ये जो प्रिय लोग हैं, यदि इनके घर में कोई दुखी है, मांदा है, प्रभु, बहुत से लोग हैं जिनके घर में भोजन नहीं है, बहुत से घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं लोग. दिस इज वेरी ट्राइंग टाइम, जीसस, दैट यू remember those, Father. We remember all of them before your throne of grace. We pray, Father, that your hand will move supernaturally. Angels across the land of India, dispatch your angels, Jesus. May your miracle working power be unleashed.
Father, anoint your people, anoint your different mediums, give them power of crisis, that we scatter the fragrance of the name of Jesus of Nazareth to the ends of the earth. Give us an innovation that we spread the fragrance of your name, Lord Jesus of Nazareth. Lord Jesus of Nazareth, human crisis is always your opportunity. You never go to waste. You use everything, Almighty God. So may your Spirit move as we intercede, as we pray, Father. May you hearken unto our petitions. May you listen unto our cry, our prayer. And Father, hallelujah, may you relent in your anger. For we remind you, you are compassionate. Even in your anger, you remember mercy. Father, you remember your covenant unto your word says. Hallelujah. To be poured out in the earth. Hallelujah. Your name be exalted, यीशु मसीह. नाम की स्तुति हो प्रभु. हालेलुया. धन्यवाद. आमीन. हालेलुया. बहुत से लोग हैं, इसलिए मुझे बीच में इंग्लिश भी बोलना पड़ता है, और मैं समझता हूँ आप में से कई लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो मैं बैलेंस बना के चलता हूँ. आज मैं वचन को कंटिन्यू करूंगा. मैं आपके साथ प्रकाशित वाक्य से, बुक ऑफ रेवलेशन से हम बात कर रहे थे कि बुक ऑफ रेवलेशन एक यूनिक बुक है. ये बुक के इस बुक का क्लेम है, रीड मी एंड स्पीक मी आउट लाउड एंड आई विल ब्लेस यू. द ओनली यूनिक बुक इन द बाइबल. और मैंने आप लोगों को एक चुनौती दी थी कि 3 दिन के अंदर पूरी बुक को पढ़िएगा. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग उस चुनौती को लेके चल रहे हैं. कल वो चैलेंज खत्म हो जाएगा, रेवलेशन को 3 डेज में फिनिश करना. आप चाहें तो एक दिन में भी कर सकते हैं भाई बहनों. हालेलुया. सो रेवलेशन इज अ वेरी, इसकी पहला वचन ये कहता है, द रेवलेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वेलिंग ऑफ जीसस, which God the Jesus, जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, so that Jesus may give it to his servants. यीशु मसीह अपने सेवकों को दे. हालेलुया. और आपको मालूम के अंदर मैं आपको बता रहा था 7 कैंडल स्टिक और 7 कलीसियाएं हैं. इसके अंदर 7 तुरियां हैं, 7 मोहरे हैं, 7 कटोरे हैं, अंदर 7 एंजल्स हैं, 7 एंजल्स हैं, और 7 एपिसल्स, पत्रियां जो जीसस क्राइस्ट खुद डिक्टेट करते हैं. आपको मालूम यीशु मसीह जॉन को क्या बोलते हैं कि इन एपिसल्स को इन चर्चेस के एंजल्स को सौंप दे. एंगेलोस ग्रीक वर्ड है यहाँ पे, एंगेलोस. इतने नुआंसेस नहीं है जैसे हिब्रू में है. is a simple word. You can carry 3 connotation or even 7. Simple angel, someone who deals in the spirit realm. Hallelujah. एंजल्स को दी जाती है ताकि वो हर चर्च, हर कलीसिया एक एंगेलोस, एक एंजल हिब्रू वर्ड है. हालेलुया. तो बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर इसको बहुत सारे लोगों को समझना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर प्रकाशित वाक्य में बहुत सी बातें जो ऐसी में लिखा है, एंड द स्पिरिट सेड लुक अप. तो जॉन ऐसे देखता है, स्टार की बातें स्टार घटती हैं कॉन्स्टलेशंस में. रिटन इन द कॉन्स्टलेशन, तारों के अंदर लिखी वो 7 तारे, रिवर्ट, 7 चर्चेज, वो 4 हॉर्न, वो तुरियां, वो 7 प्याले, वो स्क्रोल, उसकी 7 सी,
It's all there in the heavenly realm. Constellations के अंदर ये लिखी गई है ये सारी बुक. हालेलुया. और रेवलेशन आपको 4 वर्सेस है इसमें, और इसके अंदर 800 रेफरेंसेस हैं ओल्ड टेस्टामेंट से, अलूजन्स फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट. आप रेवलेशन को कभी समझ तक आपको ओल्ड टेस्टामेंट समझना है. आपको मालूम एक फॉल्स थियोलॉजी जो रिसेंट टाइम में आई, हाइपर ग्रेस थियोलॉजी, जिसने न्यू टेस्टामेंट को ओल्ड टेस्टामेंट से अलग करने की कोशिश की. यू नो, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, दे आर वन. द न्यू टेस्टामेंट इज कॉल्ड Brit Hadashah, means renewed covenant. If you read old covenant from the new and come up with hyper grace theology, it's deceptive and heretical in nature. Revelation cannot be understood. It has 800 allusions from the Old Testament. If you study Zechariah and if you know Ezekiel, if you understand Isaiah and the prophets, you will understand Revelation. Whole word of God is one. यीशु मसीह पुराने नियम को, Jesus never came to destroy the old covenant. He is actually the zenith of the old covenant. He came to establish the covenant. Hallelujah. In Revelation, you see, it connects you with the Garden of Eden. That is what I'm going to talk about. There are people who don't know English and there are people who don't know Hindi. So, you know, I have to really balance in both the languages. मैं आपको एक चाहता हूँ आप एक वचन पढ़ें. जेनेसिस 2 वर्स नंबर 8. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन आप पढ़ें. जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स नंबर 8. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन आप पढ़ें. Let me read it for you. Now the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he had formed. परमेश्वर ने एक बाग, अदन का बाग, पूरब की दिशा में लगाया और वहां पे उसने मनुष्य को रखा जिसे उसने बनाया. आपको मालूम, you know, when God created the entire universe in Genesis 1, there is only one Hebrew word that is employed, which is bara. He spoke and he created. God spoke and he created. But when God was to make man, it is not only bara that he did. He just did not only speak. There are 2 words, bara and yatsar. He created and he formed. God was personally involved in creating Adam. Hallelujah. Man is God's crowning masterpiece. मनुष्य परमेश्वर ने, God took a lump of clay, he kneaded it, he fashioned it, he created in that lump of clay, he created a nose out of clay, eyes out of clay, he created ear, mouth out of clay, he created the whole body out of clay. But this statue that God, bara, he created, was without life. Then the eternal God, the creator of heaven and the earth, who is so transcendent that heaven and the earth can't contain him, that mighty God stooped down and he blew his breath. In Hebrew the word is neshama chayim. In Hebrew the word for life is chayim. And it is so surprising that in Hebrew the word for life is not singular, it's plural. Neshama chayim. God blew his breath into the nostrils of Adam, that statue of clay. So when God blew his breath, neshama chayim, from here the breath of God, where did it go? It entered into the lungs of man. And those lungs, who were created out of clay, life hit the lungs and the lungs began to shrink and expand. And there was heart that was created out of clay.
The life hit the heart, and the heart began to pulsate with life. The organs were, they were electrified with the life of God. You know that there are two words in the New Testament for life that Paul employs: bios and zoe. Bios is a word from where we get the word biology. This life that we received from the womb of our mother is biology, bios. But Paul talks about another life which is much greater, which is zoe, God kind life. God blew his life into the nostrils of Adam. आपको मालूम, spirit in Greek is called pneuma. Pneuma is spirit. Sukoe, from where we get the English word psychology, is soul, and sarax is body. आपको मालूम ये जो विशेष वायरस है कोरोना, ये कहाँ अटैक कर रहा है? Where this vicious virus is attacking? Pneuma is spirit, and it is causing pneumonia. It is attacking the lungs where God blew his breath. Hallelujah. He is attacking the very breath of God. This vicious virus is a demon entity that has been unleashed. You can't rebuke it. Many pastors are trying to rebuke it. The only thing you can do is run to God, fall prostrate at his feet, beg his pardon, seek his mercy, cry out before him, ask him to pardon, and he will pardon, and he will speak to this vicious virus, and it will relent. Hallelujah. तो मैं जो आपको बता रहा हूं, गार्डन लगाया, बाग लगाया, इसके लिए हिंदी में लिखा है ईस्ट में। यहीं से सारे बाइबल स्कॉलरों की थियोलॉजी गलत हुई। अगर आप इसे हिब्रू टेक्स्ट में ढूंढेंगे तो ये जो वर्ड है ईस्ट, ये पूरब नहीं है। इसका मतलब ये वर्ड है मखादम या खैदम हिब्रू वर्ड है, और ये लेक्सिकन में H6924, इन हिब्रू लेक्सिकन वर्ड इज H6924। आपको मालूम इस वर्ड का असली मतलब क्या है? इट डजंट टॉक अबाउट डायरेक्शन, इट्स अ मार्कर ऑफ टाइम। इट्स टॉकिंग अबाउट इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड दिस गार्डन, not in the east, because they interpreted it east. Therefore many archaeologists and many scholarly people, they began to build up their hypotheses on conjectures that Garden of Eden was somewhere in Iraq. Garden of Eden इराक में नहीं था भाई और बहनों। हालेलुया। परमेश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन को इज़राइल में बनाया। हालेलुया। गार्डन ऑफ ईडन इज़राइल में ही था। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप पढ़ें इज़िकियल नबी की पुस्तक, उसका 28 चैप्टर, और उसके इज़िकियल 28 का 11 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे एक लेमेंट है, लेमेंटेशन है। और इज़िकियल 28 का 13 और 14, इज़िकियल 28 इज़िकियल नबी की पुस्तक आप निकालिए और उसका 28 चैप्टर, इज़िकियल 28 में, हालेलुया, इज़िकियल 28, लेट मी रीड इट फॉर यू बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 12। यहाँ पे लिखा है, सन ऑफ मैन, टेक अ लेमेंट कंसर्निंग किंग ऑफ टायर। This is what the sovereign Lord says. You were the seal of perfection, perfect in beauty. You were in Eden. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का नबी किसके ऊपर लेमेंट उठाता है? टायर, सूर के राजा के ऊपर। लेकिन सूर के राजा के ऊपर बात करता करता नबी किधर जा रहा है? नबी किसकी बात कर रहा है? यू वर द सील ऑफ परफेक्शन। तू बुद्धि से परिपूर्ण और बहुत खूबसूरत था और हर बातों में सर्वांग सिद्ध था। परमेश्वर का वचन टायर के राजा की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आगे लिखा यू वर इन ईडन द गार्डन ऑफ गॉड। तो अदन के बाग में था। हालेलुया। और लिखा है एवरी प्रेशियस स्टोन अडोन्ड यू
और अलग अलग 9 किस्म के स्टोन्स की बात की गई है। डेफिनेटली यहाँ पे परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा, एक स्पिरिट बीइंग की बात कर रहा है। आपको मालूम 28 चैप्टर और 14 चैप्टर आइजाया में जिसकी बात की जा रही है, जिसे लूसीफर लिखा गया है, ओरिजिनल में ये वर्ड लूसीफर नहीं है। जब रोमन कैथोलिक चर्च ने वल्गेट ट्रांसलेशन की लैटिन में, उन्होंने हिब्रू वर्ड को डिलीट करके यहां पे वर्ड इंटरजेक्ट कर दिया लूसीफर। द ओरिजिनल वर्ड वाज नेवर लूसीफर। द ओरिजिनल वर्ड इन हिब्रू इज हीलियल, विच सिंपली मीन्स लाइट बेयरर, रोशनी को लेके जाने वाला। ये जो स्पिरिट बीइंग है, ये रोशनी को लेके जाने वाला है। और इसको कैरबीम या चरब को कहा गया है वचन के अंदर, है कि ये उस गार्डन ऑफ ईडन में था। तो ये वो गार्डन ऑफ ईडन है भाई और बहनों, जो आदम वाले गार्डन ऑफ ईडन से भी पहले का है। ये वही गार्डन है जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी पे उतारा और जिसके अंदर सर्वोत्तम रचना रखा। उस समय आपको मालूम, विज्ञान क्वांटम फिजिसिस्ट ने यह पता लगाया कि यह दुनिया मल्टी डिमेंशनल है। इसकी अलग अलग डिमेंशंस हैं, अलग अलग डिमेंशंस में अलग अलग फिजिक्स के लॉज हैं। E इज इक्वल टू mc² हर एक डिमेंशन में नहीं चलता। स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन ऑल द डिमेंशंस, इसलिए टाइम जोन स्पिरिट डिमेंशन में अलग अलग हैं। इट्स अ मल्टी डिमेंशनल यूनिवर्स दैट गॉड क्रिएटेड। ये मल्टी डिमेंशनल दुनिया के पार से यह पुस्तक उतरी है बाइबल। इसे हम इस डिमेंशन के अंदर अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। अनटिल एंड अनलेस पवित्र आत्मा इस कलाम को हमारे ऊपर खोले, हम इसे नहीं समझ सकते। दिस बुक इज कम फ्रॉम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। हालेलुया। एंड दिस इज द ओनली बुक विच इज दस सेज द लॉर्ड। यहोवा का जीवित वचन है ये। इसे पवित्र आत्मा ही खोल सकता है, हम अपनी बुद्धि से इसे नहीं समझ सकते। आपको मालूम, गार्डन ऑफ ईडन जिसके अंदर आदम को परमेश्वर ने रखा, उसमें कई स्पिरिट डिमेंशंस उसके अंदर इंटरसेप्ट करती थी। उसके अंदर अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 3 अध्याय में कि वहां पे वो सांप गया, सरपेंट लिखा है, लेकिन हिब्रू वर्ड सरपेंट को डिनोट नहीं करता। हिब्रू वर्ड सिंपली मीन्स नखाश। नखाश एक स्पिरिट वर्ल्ड का स्पिरिट एंटिटी है। परहैप्स उसकी नकाश की जो और इंटरप्रिटेशंस हैं वो उसे सराफीम के सरीखा दिखाती हैं, क्योंकि स्पिरिट रेल्म वहां पे इंटरसेप्ट करता था गार्डन ऑफ ईडन में। स्पिरिट रेल्म के जो और स्पिरिट एंटिटी हैं उस गार्डन के अंदर आते जाते थे, इसलिए हवा ने उससे बातें की। और उसके पीछे कौन था? नकाश के पीछे था शैतान, से परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया, जिसने मानव को परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर की आज्ञा लिए उकसाया। और आपको मालूम, अगर आप पढ़ेंगे, मैं इसका 13 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 14 वचन रादर। यू वर एन अनॉइंटेड गार्जियन चेरब, करूबीम था, सो आई ordained you. You were on the holy mount of God. You walked among the fiery stone. Where was? पहले लिखा है तू गार्डन ऑफ ईडन में था, तू ईडन में था। फिर लिखा है you were on the mount of God. So where was Eden? The original Eden. The original Eden was on the mount of God. यहोवा के पहाड़ के, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर बड़ी गहरी शिक्षा है। परमेश्वर के पहाड़ का मतलब क्या है? द माउंट ऑफ गॉड, द माउंटेन ऑफ गॉड मीन्स वो जगह जहां पे डिवाइन काउंसिल बैठती है, वो जगह जहां पे परमेश्वर की गवर्नमेंट बैठती है, वो जगह जहां परमेश्वर अपना थ्रोन लगाता है, अपने कोर्ट रूम लगाता है, वो जगह पे स्पिरिट बीइंग बैठते हैं परमेश्वर के साथ।
उस पहाड़ के ऊपर एक जगह में परमेश्वर ने ये गार्डन लगाया, और यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है जो वर्ड है, यू वर anointed एज ए गार्जियन cherub, so I ordained you, you were on the holy mount of God, holy mount of God। इसके लिए हिब्रू वर्ड है हार मोएड, हार मोएड, माउंट ऑफ असेंबली और द माउंटेन ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। इसका मतलब है हार मोएड से आपको मालूम कौन सा शब्द निकलता है? हार मोएड से आर्मगैडन, आर्मगैडन। समझ रहे हैं आप? उत्पत्ति की पुस्तक जो गार्डन है ईडन का, वो आपको कहां लेके जा रहा है? आर्मगैडन। कहां पे है आर्मगैडन? आर्मगैडन प्रकाशित वाक्य में है। एक बड़ा संग्राम, एक ऐसा युद्ध जिसमें पृथ्वी के सभी देश अपनी फौजों को भेजेंगे मसीह के विरोध में लड़ने के लिए। गार्डन ऑफ ईडन आपको कनेक्ट करता है आर्मगैडन से। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक दो वचन पढ़े हम। यशाया की पुस्तक निकालिए, उसका 14 अध्याय। यशाया की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, आइजाया चैप्टर 14 और उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। यशाया 14 अध्याय के 12 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। हाउ यू हैव फॉलन फ्रॉम हेवन, मॉर्निंग स्टार, सन ऑफ डॉन, यू हैव बीन कास्ट डाउन टू द अर्थ, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God, I will sit enthroned on the mountain of assembly। क्या लालसा थी लूसीफर की? लूसीफर के अंदर प्राइड आया। उसका नाम लूसीफर नहीं, उसका नाम हीलियल है हिब्रू में। उसके हृदय में वो यहोवा परमेश्वर का नौकर था, चरुबीम था, और परमेश्वर के पवित्र पहाड़ का गार्जियन एंजल था। और उसके विषय में लिखा है वो यहोवा की फरिश्तों की सेनाओं की अगुवाई करता था यहोवा की उपासना करने के लिए। तो उसके अंदर घमंड आया। बहुत सी बातें हैं, फिर कभी करेंगे। उसके अंदर कुटिलता पाई गई। तेरे व्यापार के कारण, वो कौन सा व्यापार करता था जिसके कारण लूसीफर में, हीलियल के अंदर कुटिलता पाई गई, ये हम फिर इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो क्या चाहता था? वो चाहता था हर मोएड के ऊपर, जो माउंट ऑफ असेंबली जहां पे यहोवा बैठता है, जहां पे प्राचीनों का सिंहासन लगता है, जहां पे 70 की कौंसल लगती है, जहां पे डिवाइन कौंसल्स लगती हैं, जहां पे सराफीम, ओफनीम, चैरुबीम, अलग अलग रैंक के, अलग अलग डिमेंशन के एंजल्स यहोवा की सेवा करते हैं। उस पहाड़ से, यहां पे लिखा है, मैं ऊंचा पहाड़ अपना बनाऊंगा। हालेलुया। I will ascend beyond the mountain of assembly। हालेलुया। क्या उसके अंदर अभिलाषा पैदा हुई कि मेरी उपासना की जाए? हालेलुया। मेरी आराधना की जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अदन के बाग से कहानी जाती है आर्मगैडन तक, फ्रॉम ईडन टू आर्मगैडन, हार मोएडीम तक बात जाती है। हालेलुया। आपको मालूम गार्डन ऑफ ईडन जो है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल देना चाहता हूं। ओल्ड पर्शियन में इसे पैराडीजा कहा गया, पैराडीजा, जिसका मतलब रैम्पार्ट, वॉल्ड एंड क्लोज्ड सिटी, एक ऐसा शहर जिसके बाहर बड़ी बड़ी दीवारें हैं। और अकेडियन लैंग्वेज में इसे पारडीसू, पारडीसू कहा गया है। हिब्रू में पैराडाइज कहा गया, और ग्रीक में पैराडोसो, और इंग्लिश में यहां से वर्ड निकला पैराडाइज। गार्डन ऑफ ईडन वॉज पैराडाइज। गार्डन ऑफ ईडन इंटरसेप्टेड विद so many spiritual dimensions. It was a place where God himself visited and had fellowship with man whom he created. मालूम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है protected space. Garden of Eden was a protected space and it was reserved for king. राजाओं के रहने की जगह थी। रॉयल पैलेस था गार्डन ऑफ ईडन। एडम एंड ईव रॉयल्टी थे। हालेलुया।
वो ऑलरेडी सब कुछ थे। जो शैतान ने उनको बोला ना कि तुम बन जाओगे अगर खाओगे, उन्हें कहना चाहिए था हम तो ऑलरेडी हैं भाई, हमें अपने सृष्टा की आज्ञा तोड़ने की जरूरत नहीं। Satan was giving them false promise. He was telling them that they will become which they were already. He was envious of them. He was jealous because at one point of time the place that God gave to the mortal man was given to him. Hallelujah. तो जेनेसिस 3 में जो आता है वो स्पिरिट रेल्म से आता है, उसका नाम है नखाश। उस गार्डन में आता है। आपको मालूम, गार्डन की बाइबल में बहुत वैल्यू है। परमेश्वर हमेशा गार्डन लगाता है और परमेश्वर को हम गार्डनर के रूप में देखते हैं, एक गार्डनर के रूप में। ही एस्टैब्लिशेस ए गार्डन। एवरी होम ऑफ अ बिलीवर इन क्राइस्ट जीसस इज अ लिटिल मिनी गार्डन। Hallelujah. It's protected. The protection is the blood of the lamb. The protection is the angelic host. The protection is the wall of fire. ज़करिया में परमेश्वर कहता है, I shall be a wall of fire round about thee. मैं तेरे इर्द गिर्द आग की दीवार बन के रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको रॉयल्टी की तरह ट्रीट करता है। अगर आप यशाया 63 अध्याय 3-4 वचन पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर कंडेम करता है उन लोगों को जो गार्डन में जाते हैं और सूअर का मांस खाते हैं। और आपको मालूम, ये जो गार्डन था, गार्डन, शैतान हमेशा परमेश्वर की आध्यात्मिक चीजों का कॉन्टरफीट करता है। और अगर आप इजरायली लोग क्या करने लगे, क्योंकि इसराइल के इर्द गिर्द जो कौमें थी, जो राष्ट्र थे, कनानी लोग, हित्ती लोग, जबूसी लोग, अकेडियन लोग, ये जब लोग इनके मर जाते थे पुरखे, तो अपने मरे हुए पुरखों की पूजा करते थे। बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि जब याकूब अपने ससुर के घर में था और वहां से निकला, तो उसकी जो बीवी थी रेचल, वो अपने पिता के देवते चुरा के ले गई। और उसका ससुर जो था लबान, वो उसका पीछा करता हुआ आया। तो रेचल ने क्या किया, वो अपने तंबू के अंदर ऊंट के ऊपर बैठ गई। जब उसका पिता आया तो उसने उससे कहा, मैं मासिक धर्म से हूं, मैं उठ नहीं सकती। तो उसके पिता ने तलाशी नहीं ली, वरना याकूब के ससुर ने हर चीज की तलाशी ली। वो अपने देवताओं को ढूंढने आया था। आपको मालूम वहां देवताओं के लिए कौन सा हिब्रू वर्ड है? वहां पे देवताओं के लिए हिब्रू वर्ड है टेराफीम। ये टेराफीम कौन होते थे? जब अन्य जातियों के बड़े प्राचीन बुजुर्ग मरते थे तो उनकी मृतक देह से वो उनकी ऐसे गर्दन को काट लेते थे, बाकी की बॉडी को एम्बाम करके बरी करते थे। और ये जो चेहरा होता था, इसको तरह तरह के स्पाइसेस, और फिर ये पूरे का पूरा सिर घर में टांगा होता था। इसे टेराफीम बोला जाता था। वो ऐसी जादूगरी की प्रैक्टिस, you know, that was called necromancy in the Old Testament. Those teraphim, the demons used to speak through those teraphim. Rachel took away the teraphim of his father Laban. She feared in her heart that her father will come chasing her husband and will take them back as slaves. How would he come to know? He will consult the teraphims, and the teraphims will tell him the location. That's why she stole those teraphims, those gods, and took them along with. Israelites, they began to venerate the dead. Culture. If you study about Manasseh and Amnon and Hezekiah, they were very evil kings. They were venerating the dead. They made pact with the other world. The other world. Bible में उनको रफाइम कहा गया है. Bible calls them रफाइम. मैंने आपको बताया आज from एमस में से आज आपको मैंने बताया था कि वो 2 बवाएं कौन सी है। खैर उसके अंदर मैं नहीं जानता। they made pact with the other party, इसलिए therefore it is written, when these guys, these evil kings, they died, they were not buried in the royal tombs, they were buried in the garden of Uzzah.
because they wanted to venerate themselves when they would die, so that their souls will pass through the other side and they will go in the council of the Raphaims. वो रफाइम की कौंसल में चले जाएं, हालेलुया। वो फॉलन एंजल्स के साथ उन्होंने अपना पैक्ट बांधा था। अकेडियन लोग जो हैं, मौरी लोग जो हैं, यू कैन स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ यूगरेटिक कल्चर। तो वचन में लिखा है, आपने पढ़ी होगी टाइटन्स की स्टोरी इन द ग्रीक कल्चर, द टाइटन्स। ये सब कहानियां उससे रिलेट करती हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत से प्लेयर्स हैं। नकाश इज वन प्लेयर, एंड Hasatan in the Old Testament was not a name, it was just a title given to the spirit being. His name is Heliel, Raphaims, fallen angels, Nephilims, और बहुत सी ऐसी गंदी आत्माओं की स्पिरिट एंटिटीज हैं, फॉलन एंजल्स, अलग अलग जो देवताज वेनिरेट हुए, ये सब चीजें परमेश्वर के कलाम के अंदर हैं। अगर आप ढूंढोगे 1/3 स्टार्स जिसको उसने अपनी पूंछ के साथ गिरा लिया, तब आपको परमेश्वर के कलाम की ये सच्चाई पता लगेगी। आपको मालूम, अगर आप पढ़ेंगे गिनती 21:6 और आइजाया 14:29, नकाश को सराफीम के साथ इंटरचेंजेबली यूज किया गया है परमेश्वर के कलाम के अंदर। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई है, ये बड़ी इंटेंस है। प्रकाशित वाक्य 12:9 पढ़ें। मैंने आपको बताया रेवलेशन चैप्टर 12 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 1 till 8 is fulfilled already. It was fulfilled when Jesus was born, and it found its second fulfillment on 23rd of September 2017. It was a celestial sign. You can check it even on NASA's website. And right after that, what Word of God says, there is the archangel with his angels fights the devil and his cohorts. हम उस वॉर के सीजन में है, प्रकाशित वाक्य 12:9 के अंदर जो है, हालेलुया। और आपको मालूम, गोग मगोग की लड़ाई होगी, उसके बहुत बड़ी लड़ाई है, हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं अब समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय के 16 वचन में हम देखते हैं कि फॉल्स प्रॉफिट इमर्ज होता है, और रेवलेशन 19:20 बताता है कि वो फॉल्स प्रॉफिट जो है वो बीस्ट का राइट हैंड मैन है। और 1 जॉन 2:18, 22, 4:3 और 2 जॉन 7 में हम देखते हैं एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट के विषय में। फिर हम प्रकाशित वाक्य 13:11 में देखते हैं बीस्ट बाहर आ रहा है, पृथ्वी में से बीस्ट निकल रहा है। एंटी क्राइस्ट जो मसीह विरोधी है, और बीस्ट जो पृथ्वी में से निकल रहा है, और फॉल्स प्रॉफिट, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य 16:16 बता रहा है कि शैतान अपनी योजना बना रहा है, लेकिन इन सब के पीछे परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है जो पूरा होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, ये मत सोचिएगा कि कोविड-19 के बाद बहुत सी ट्रेजेडियां पहले आई, दुनिया फिर वैसे स्मूथ हो गई, सब कुछ वैसे का वैसे हो जाएगा। आप इस भ्रम में मत रहिए। कोविड-19 के बाद दुनिया चेंज हो रही है। यू विल सी ग्रेट एक्सेलरेशन इन द स्पिरिट रेल्म। इवेंट्स ऐसे घटने शुरू हो जाएंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। वैटिकन इज स्पीयर हेडिंग दिस मूवमेंट। दुनिया के सब धर्म इकट्ठा हो रहे हैं। एजेंडा ID 2020 इज ऑन द होराइजन। वैक्सीनेशन आएंगी जो आपकी बॉडी में बायोचिप करके डाली जाएंगी। दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत मैसिव क्रंच देखने जा रहे हैं। आप देखेंगे लड़ाइयों की अफवाहें, बहुत सी एपिडेमिक आएंगी, बहुत से एपिडेमिक, वायरसेस एंड बायोकेमिकल थ्रेट, मेनी थिंग्स आर ऑन द होराइजन। और आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या क्या बताया? यीशु मसीह ने बताया अकाल पड़ेंगे, फैमिन्स। यीशु मसीह ने बताया भूकंप आएंगे। यीशु मसीह ने बताया सुनामी आएंगी। क्यों आएंगी उसकी वजह बताई। यीशु मसीह ने बताया सेलेशियल दुनिया में सूर्य के अंदर सन फ्लेयर्स होंगी। चांद, आपने देखा पिछले 3 सालों में
3 मरतबा ब्लड मून हुआ, 2-2 बार एक एक साल में। ब्लड मून टेट्राड बोलते हैं उसको। चांद का रंग लहू जैसा लाल हो गया। बहुत से भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की, लोगों ने सोचा ऐसे ही बोलते हैं, ये तो बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये डूम्स डे प्रॉफिट है एंड ऑल दैट। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा सूर्य में सनफ्लेयर, चांद के अंदर निशान होंगे, तारों में निशान होंगे, मीट्रियोटिक शावर्स होंगी, एस्टेरॉयड मीट्रियोइड पृथ्वी के ऊपर गिरेंगे। अभी इस मंथ में भी कुछ गिरने वाला है। और फिर प्रभु ने बोला इनकी वजह से सुनामीज आएंगी और उसकी वजह से फैमिन आएंगे, पेस्टिलेंस आएंगी, एनिमल डिजीजेस इन किंगडम के अंदर, क्योंकि वैज्ञानिक ह्यूमन जीनोम को बदलेंगे, ह्यूमन डीएनए को टेम्पर करेंगे, हाइब्रिड एज आएगी। दानियल के दर्शन के मुताबिक वो आखिरी एज जिसमें हम हैं हाइब्रिड एज है, जिसमें लोहा और क्ले आपस में मिले हुए, हाइब्रिड एज, हर चीज में मिलावट, ह्यूमन जीनोम्स को स्प्लिट किया जाएगा। कैस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी यूएस ने ऑलरेडी बना दी। ये सब बातें एल्केमी और अकल्टिज्म के अंदर मिक्स होती जा रही है। सर्न जो है, जो वैज्ञानिकों की एजेंसी है, सर्न जिनेवा में राइडर बना के फोटॉन्स को दौड़ा रहे थे 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार, फोटॉन्स को दौड़ा के वो कोलिजन करना चाहते हैं ताकि ये देखें गॉड पार्टिकल क्या है। लेकिन हकीकत यह है भाई और बहनों, वो डिमेंशंस को ब्रेक करना चाहते हैं। मल्टीपल डिमेंशन की दुनिया परमेश्वर ने बनाई है और बांध के रखा है। जो दूसरे उनकी एक्सेस बड़ी लिमिटेड है। अभी क्या 12 अध्याय में लिखा है, जब माइकल शैतान और उसके दूतों को हराएगा उनको पृथ्वी पे गिरा दिया जाएगा। रेवलेशन में शैतान पृथ्वी पे आता है और पृथ्वी पे हैवक होगा। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेके जाएगा निकाल के। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसके आगमन से पहले लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा झूठे नबी लोगों को गुमराह करेंगे, झूठी शिक्षा देने वाले आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा फॉल्स मसायाज आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है 1 तीमुथियुस 4:1-2 में, पुलपिट से मशहूर फेमस प्रीचर डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस प्रीच करेंगे। लोग गुमराह हो जाएंगे, लोग पास्टरों को, सेलिब्रिटी पास्टरों के चेले बनेंगे, फैंस, यीशु मसीह के संग नहीं जुड़ेंगे। वो पवित्र जीवन जिए, पाप को छोड़ें, अधर्म को छोड़ें, गंदे काम छोड़ें, धर्मी जीवन जिए, ये शिक्षा नहीं देंगे। बड़ा अमीन बोलो, बड़ी बरकत लो, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी। आपकी लाइफ जितनी प्रॉस्परस है उतनी जबरदस्त आपकी साक्षी है मसीह के लिए, ये सिखाएंगे। और वचन में लिखा है लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और वो भ्रष्ट हो जाएंगे और उनकी कुप्पियों में तेल खत्म हो जाएगा, उनके पास एक्स्ट्रा नहीं होगा। आपको मालूम ये जो समय है इसमें एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए। ये एक्स्ट्रा ऑयल कहां से मिलेगा? प्रभु के चरणों में बैठने से मिलेगा, प्रभु के वचन की संगति करने से, पवित्र जीवन जीने से मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको आह्वान करता हूं प्रभु की ओर मुड़े, सच्चे कलाम, सच्चे वचन को ढूंढें। हालेलुया। प्रभु से कहें आपके प्रार्थना के जीवन में प्रभु आग लगाए, पवित्र आत्मा की आग। आपको मालूम मसीहत कितनी सिंपल थी पहले। आज मुझे 30 साल हो गए प्रभु के संग चलते। पहले लोग घुटने टेकते थे, प्रार्थना करते थे, अन्य भाषा बोल के पवित्र आत्मा में भर जाते थे। लोगों के पास मटेरियल चीजें नहीं होती थी, लेकिन ओवरवेलमिंग जॉय ऑफ द लॉर्ड होता था। आज लोग बनावटी हैं। लोग कलाम को पता कैसे लेते हैं? अरे बोलो, अच्छे शब्द बोलो, आपके संग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे मैं राइचियसनेस हूं प्रभु की, मेरे ऊपर कोई कॉन्डमनेशन नहीं है। आपको मालूम क्या लिखा कलाम में? कलाम में लिखा जो आत्मा में चलते हैं उनके ऊपर कोई कॉन्डमनेशन नहीं है, जो पवित्र आत्मा में चलते हैं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, प्रभु उन्हें कहता है। पढ़े वचन पूरा 13 अध्याय इब्रानियों में। जो सेवा करते हैं, जो पैसे से प्यार नहीं करते, ग्रीडी नहीं है, और जिनकी सेक्सुअल लाइफ प्योर है, उनके संग कवनेंट है प्रभु का, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पूरा वचन नहीं पढ़ते आप, एक आयत बीच में से निकालते हैं। फेमस प्रीचर आपको एक सिंगल आयत देते हैं और बोलते हैं इसके ऊपर ठहर जा। गीत आते हैं, कैसे गीत आ रहे हैं? चुपचाप खड़े रहो, खुदा दी निजात दे काम देखो।
अरे भाई चुपचाप मत खड़ा, अगर तेरा जीवन पाप से भरा है, गिर जा उसके चरणों में, बिछ जा उसके चरणों में, पकड़ ले उसके चरण, चिल्ला, दुहाई दे, मुझे क्षमा कर प्रभु। आपको मालूम किधर खड़े लेके जा रहे हैं ये पादरी लोग? ये नहीं सिखा रहे अपना जीवन तोड़ो प्रभु के आगे, अपने अंदर से गंद कड्डो, गंदगी बदकारी निकालो, जुड़ो प्रभु के संग। ये बनावटी नहीं चलेगा मेकअप भाई और बहनों, सच्चा जीवन चाहिए। कलाम के ऐसे फोके आयते ना, हवा में तीरों की तरह फेंकते जाओ, प्रभु की ओर मुड़े भाई और बहनों। मैं टूटे हृदय से आपको कह रहा हूं, मेरे ऊपर नबूवत का रूह है, इसलिए मैं ये वचन बोलता हूं कि आप बच जाएं, प्रभु की ओर मुड़े। इन दिनों में झूठी शिक्षाएं लोगों का बेड़ा गर्क करेंगी और कर रही हैं, इसलिए आइए ये वचन देखिए भाई और बहनों, ये जीवित कलाम, लोगों ने अपना जीवन दिया है, अपना लहू बहाया है, इनको जला दिया गया जो इसे ट्रांसलेट करते थे वृक्षों के साथ बांध के, मर गए वो लोग, अपने परिवारों की कुर्बानियां दी, इसको ट्रांसलेट किया, हमारे तक पहुंचाया है। इससे प्यार करें, इसे खोजें, इसके अंदर सब कुछ है। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू को तेरे लोगों पे छिड़कता हूँ प्रभु जी। इनमें से एक को छुएं, यदि कोई रोगी है, मांदा है, प्रभु आप छू के चंगा करें प्रभु। इनके जीवनों में आपका रूह, आपका आत्मा काम करे यीशु मसीह, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे। मैं आपके लहू के अभिषेक को इनके ऊपर खोलता हूँ प्रभु, कि इनके दिलों में आपके लिए आग जगे, पवित्र आत्मा की आग, आपके लिए प्रेम उमड़े पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु आप वास्तविक हो जाओ, इनको दिखाई दो, इन्हें प्रभु आपकी हजूरी दिखाई दे प्रभु। प्रभु जब लॉकडाउन में लोग कुछ भी करने के लिए नहीं है, आप ही ने घरों में बिठाया है, आप इस सृष्टि को सबत दे रहे हो, आराम दे रहे हो। लोगों ने सबत नहीं दिया, इस कायनात को गंदा कर दिया सृष्टि को। ये आपकी सृष्टि है प्रभु, आपने बनाई है ये दुनिया, ये पृथ्वी आपकी है, ये पेड़ पौधे आपके हैं, नदियां नाले झरने आपके हैं प्रभु, समुंदर आपके, पहाड़ आपके हैं, पक्षी जानवर रेंगने वाले चौपाए जलचर आपके हैं प्रभु। ये कायनात आपकी है, मनुष्य ने इसे भ्रष्ट किया है, आप अपनी कायनात को रिक्लेम कर रहे हो, इसे हील कर रहे हो, क्योंकि पृथ्वी करा रही है, रो रही है आपके आगे, और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, ईसाइयों की नहीं, परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो उसकी वाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो आत्मा में चलते हैं, दिखावटी बनावटी जीवन जीने वाले नहीं, सच्चा मसीह जीवन जीने वाले। प्रभु जी अब आप काम करें, आग भेजें पवित्र आत्मा की प्रभु जी, आग भेजें प्रभु जी, पवित्र आत्मा की आग भेजें प्रभु जी। प्रत्येक कुछ से बड़ा काम आप करेंगे, आपने कहा है, यू सेड लेटर ग्लोरी शैल बी ग्रेटर देन द फॉर्मर ग्लोरी। यू सेड फादर देयर वुड बी ग्रेट एंड माइटी मूव इन द अर्थ, ग्रेट अवेकनिंग फादर, वी हियर दैट लेटर रेन इज देयर ग्रेटर देन द फॉर्मर रेन, सेंड इट फादर। We pray once again for Russia. We pray for South Africa and Africa. We pray for India. Father, may your hand move upon the earth. Have mercy upon the inhabitants of the earth, Father. जितने लोगों ने वचन सुना, बाद में सुनेंगे, उनमें से एक एक को अपने लहू में छिपाए प्रभु। पवित्र जीवन, हलीम जीवन, घमंड से भरा जीवन नहीं, एरोगेंट जीवन नहीं, पवित्र समर्पित जीवन जीने के लिए मसा करें अपने लोगों को। यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप अपने कमेंट भेज सकते हैं, फेसबुक पे बता सकते हैं। कल हम फिर प्रार्थना करेंगे 10:30 या 10:45, आपको बता देंगे। फिर सुबह कुछ कंट्रीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर शाम को करेंगे और वचन में और अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको संभाले, अपने लहू के नीचे रखे और आशीषित करें यीशु मसीह के जलाली नाम में। यदि मैं कोई ऐसा मांगना नहीं चाहता, अगर आपके हृदय में कोई डाले प्रभु के लिए कोई बीज बोने के लिए, कुछ लोगों की सहायता के लिए कोई बीज बोना चाहें, तो ब्रदर रमन आपको मिलेंगे, आप फेसबुक पे ब्रदर रमन जी, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी बीज बोना चाहते हैं प्रभु के लिए, जो हम ज़रूरतमंद लोगों तक भेज दें। हम कुछ भी ना, मैं ये नहीं चाहता कि फेसबुक पे डालें कोई चैरिटी का काम, फोटोज डालें। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट। और मैं कोई इसकी अनाउंसमेंट भी नहीं करना चाहता कि हम ऐसा कोई फ्लैशली काम करें।
आत्मा में चलें, हालेलुया, आत्मा में जिएं। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। टुमारो वी विल मीट अगेन इन जीसस नेम, आमीन।